श्रीमान परेड निरीक्षण को तैयार है। परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय सफेद खुली जीप में परेड का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। निशान परेड पर। राष्ट्रीय ध्वज व निशान को मुख्य निरीक्षक ओम प्रकाश के नेतृत्व में परेड के मध्य में ले जाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का बैंड राजस्थान फ्लो की धुन बजा रहा है।
आवश्यक है कि शपथ ग्रहण करने वाले अधिकारियों को उनकी कर्तव्यपरायणता की शपथ दिलाते हैं। प्रण करता हूँ कि मैं भारत और भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता पूर्ण रखूंगा तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का देशभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा। मैं दिल्ली पुलिस में सच्चाई के साथ सेवा करता रहूंगा। पवन, जल, भूमि में जिस मार्ग से जाने की आज्ञा होगी जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी सारी आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा। यद्यपि उसमें प्राण जाने का भी भय हो। कृपा करें।
मौलाना उप निरीक्षक जो दिल्ली पुलिस की बहुत अच्छी मेन महिला है। यदि पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की जिसे पीली उषा कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हैं कुमारी मधु शर्मा, उप निरीक्षक। इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं दिल्ली के जाने माने एथलीट आनंद सिंह, निरीक्षक। सलामी मंच से गुजरकर वापस अपने स्थान पर पहुंच रही है। राष्ट्रीय सलूट देगा, राष्ट्रीय सलूट, सलामी, शस्त्र। Honorable Lieutenant Governor of Delhi, Commissioner of Police, distinguished guests, ladies and officers and men of Delhi Police. On behalf of faculty members and trainees of PTS and Delhi Police, I welcome the Honorable Lieutenant Governor of Delhi, who very kindly agreed to call the trouble and spare time from his busy schedule to take the salute of passing out parade of 59 PSIs and 102 women PSI ESIs. I also welcome all the guests and officers and men of Delhi Police to be here to grace this function. Sir, the police training school was set up in Mehrauli in January 1969 on the recommendations of Personal Commission. At Mehrauli, it functioned in tents for full 15 years, from 1969 to 1984, and was shifted to its present location in 1984. Here also still it is partly housed in built-up accommodation and partly in tents. We are conducting induction training for constables, head constables, stenographers, sub-inspectors and assistant sub-inspectors, and promotional courses for head constables, assistant sub-inspectors and sub-inspectors. Other courses include drill instructors course, motorcycle riding and short duration course for custom and excise officers. During last 1 year,
3,637 officers and men were trained in different courses. In PTS, we have reorganized and modified training courses as per recommendations of Gore Committee and approved by BPND and MSA. Indoor training includes teaching of law, police science, forensic science, medical jurisprudence, historical, political, economical, and social background of the country to develop general awareness. Outdoor training is to teach discipline, toughening of body, sharpening of the reflexes, and knowledge, handling and use of weapons. Every effort is made to ensure that police personnel who are trained here turn out to be mentally sound, professionally skilled, physically fit, and are capable to respond effectively to face challenges in changing social situation and to meet the demand of a new role in a developing welfare state. To achieve these objectives, we have adopted integrated and concentric methods of teaching with emphasis on practicals and field exercises. We take the trainees to hospitals and Central Forensic Science Laboratory, Nareliketan Children Home, and Central Jail to give them a field and practical working knowledge of these institutions. Lectures and practical demonstrations are arranged for practical and specialized subjects like air smoke, firefighting, first aid, fingerprint, radio communication, booby traps, and other improvised explosive devices, family welfare, drug abuse, and behavioral sciences by inviting persons of repute and experts on these subjects. Trainees are also escorted to various field duties like night patrolling, sentry duty, VIP security duty, and law and order duties in districts. At the instance of the Commissioner of Police, we have started one capsule course for ACs and inspectors on towards the new police personality and culture. 4 such courses have been conducted and 214 ACs and inspectors have attended this course. The main objective of this course is to inculcate scientific temper and new orientation in dealing with the masses. To use scientific aids to investigation and prevention of crime. To have polite, courteous and humane approach towards the public, particularly the women, children, poor and weaker sections of society, instead of being rude, rough and authoritarian behavior. To motivate them to have pride in uniform, job involvement, sense of belonging to the force, commitment and dedication to serve and help the people in distress, and to eliminate third-degree methods of torture, beating and coercion. These subjects have also been formed part of the training schedule of different courses in PTS. Sir, here in PTS there is a huge shortage of built-up accommodation. We have only 3 barrack blocks, 2 mess blocks and 299 residential quarters. Residential quarters are being used as living accommodation for about 1,200 trainees, and barracks are being used as classrooms for offices, stores and quarters. Nearly 600 trainees are residing in tents. Their classrooms are in tents, their dining rooms are in tents, they use dry latrines and take baths in the open. More barracks, classrooms, library, mini forensic science block, computer cell, administrative block, quarter guard, stores, multi-purpose hall, recreation room, canteen, etc. are yet to be constructed. There is a acute shortage of water. Our water tanker makes several trips to bring water from MCD reservoir and Nazargarh. 9 tubewells were installed to make up the shortage goods, but these are not supplying adequate water. 4 of them have dried up. Moreover, the underground water is brackish and is not fit for drinking. Due to shortage of water, we are unable to have green lawns, plants, trees and other greenery to beautify this place. There is a lot of load shedding which disturbs our training schedule of indoor classes. One generator set has been installed in PTS, but PWD has not generator operators to operate them. During summer months, hot winds and dust storms add our difficulty. At present, we have 76 acres of land for PTS, which is not sufficient to meet our functional requirements. Additional 46.3 acres of land adjacent to PTS has been approved by DDA and is pending in the administration for acquiring allotment to PTS. In 1986, MSA approved setting up our police training college, for which 73 acres of land has been allotted. In front of PTS, additional 45 acres of land has been approved by DDA and is lying in the administration for acquiring allotment. The proposal of police training college has since been sent to government for sanctioning staff, vehicles, equipment, building, so that 48 other training courses and refresher courses for officers of the rank of sub-inspectors, inspectors, army and IPS officers, and other senior officers could be conducted in the college.
There is urgent need of adequate medical facilities at such far off place where injuries and other ailments are natural due to rigorous and hard physical training. After a long correspondence, a CGHS dispensary has been sanctioned, but they want lot of covered accommodation, which we are unable to meet due to our own limitations. Still, we have offered them 4-room accommodation to start with. In spite of many odds and difficulties, we are very conscious to the welfare and comforts of the trainees and staff. One feature film is displayed every week. There are 4 color TV sets and 2 VCRs for screen training films and for entertainment to the trainees and staff. There is one small library having more than 8,000 books on different subjects, magazines and newspapers for reading purposes. One canteen provision store supplied tea, snacks and articles of daily use at cheaper rates. We encourage sports. Some of the PSIs, ASIs, men and women are outstanding sportsmen, women of national and international standard. One PSI, Sanjay Vyala, got bronze medal in judo in Asian Games at Seoul in 1986. Gold medal at South Asia Judo Championship held at Kathmandu, Nepal in 1987. Gold medal in National Open Weight Judo Championship held in Delhi in 1985. And he is still having National Judo Championship for the last 6 years. Punjab government awarded him Maharaja Ranjit Singh Award in 1989 in recognition of his achievements in the sports. PSI Dinesh Kumar won bronze medal in Asian Wrestling Championship held in Bombay in 1987 and gold medal in National Championship. PSI Anand Singh represented India in athletics in South Asian Games held at Dhaka in 1982. He also represented Delhi State in national athletic events. Women ASI Malki Bana won gold medal in UP weightlifting women championship by lifting 55 and 63 kg weight in snap and jerking events respectively. She also got first position long jump in Meerut University in 1986. She also commanded UP NCC contingent in National Republic Day NCC parade. Women ASI Kamlesh Sirari played hockey at national level from 1983 to February 1988. Women ASI Santosh Kumari represented Delhi State in Kabaddi in national events in 1986 and 1987. Recently, in the intermediate sports meet held in DAP in February 87, GTS secured second overall position in various different events and games. A high-powered committee consisting of Special Secretary Home MHA, Director Training DPR&D, Director NP Hyderabad, and Home Secretary Delhi Administration visited PTS on 22nd December 1987. While submitting a report to the government, they inter alia appreciated the quality of training in spite of the absence of minimum basic infrastructure, facilities and resources. They also paid tributes to the officers and men of PTS who have produced results in spite of many odds and described the training of a very high standard. With these small facilities available and improvised by us, we are keeping the standard of training and morale of the training staff very high. Once again, on behalf of PTS and Delhi Police, I express my sincere thanks to you, sir, for making it convenient to be here to encourage us and to boost our morale. I also express my thanks to all guests, ladies and officers of Delhi Police who have obliged us to be here and graced the response. नंबर D 1175। यह उपनिरीक्षक सब विषयों में प्रथम आए हैं। इन्हें उपराज्यपाल का रनिंग कप व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। कानून की परीक्षा में भी प्रथम आए हैं। मुख्य कार्यकारी पार्षद महोदय का रनिंग कप व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। उपनिरीक्षक उपनिरीक्षक पुलिस विज्ञान में भी प्रथम आए हैं।
महापौर दिल्ली का रनिंग कप व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। उपनिरीक्षक आनंद सिंह नहिया नंबर 20/674। यह उपनिरीक्षक मैदानी परीक्षण में प्रथम आए हैं। यह दिल्ली के एक अच्छे एथलीट हैं। इन्होंने सन 1982 से 1987 तक दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया तथा दिल्ली के चैंपियन रहे हैं। इन्हें मुख्य सचिव दिल्ली का रनिंग कप व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। उपनिरीक्षक आनंद सिंह। महिला सहायक उपस्थान प्राप्त किया है। अतः इन्हें आयुक्त पुलिस दिल्ली का रनिंग कप व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। सहायक उपनिरीक्षक सुमन। Very good. Let's go. Musket firing. Well done. Commissioner of Police, Shri Raja Vijay Karan ji, Additional Commissioner of Police, Shri Kartar Singh ji, Police Training School के प्रिंसिपल श्री पूरन सिंह जी, दिल्ली पुलिस के अफसरगण, नौजवानों, उपस्थित भाइयों बहनों बंधुओं, सबसे पहले मैं दिल्ली पुलिस के अफसरान को मुबारकबाद देता हूं जो 1 साल की ट्रेनिंग के बाद मैदान में जाएंगे। मैं खास तौर पर उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्होंने ट्रॉफी प्राप्त की। हम सबको बहुत खुशी हुई आपको देखकर। इस 1 साल के दौरान में आपको बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग मिली है। न केवल आपके शरीर चुस्त हुए हैं और आपको डिसिप्लिन सिखाया गया है, लेकिन बहुत ही विषयों में आपको शिक्षा दी गई है। मैं जानता हूं इस साल में आपको कोई मुसीबत भी जानी पड़ी। ये तो है ही, पानी की कमी थी, गर्मी का मौसम है, कभी कभी बिजली नहीं आती, रहने के लिए और भी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ये भी हमें याद रखना है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है और इतनी चीजें हैं जो पहले नहीं थी, अब यहाँ दी जा रही हैं। आपकी आगे की भी योजनाएं हैं। आपको और जमीन की जरूरत है और मकानों की जरूरत है, वो मिल जाएंगी। आपको एक और कोर्स भी शुरू करना है अफसरों के लिए, मेरे ख्याल वो भी बहुत जरूरी है। अब आप जब नौकरी में जाएंगे, मैं कुछ चंद चीजें उस विषय पे कहना चाहता हूं। आपको एक बहुत खास मौका मिल रहा है देश की सेवा करने को, दिल्ली की सेवा करने के लिए और अपने भाई बहनों की सेवा करने के लिए। आप पहले आम नागरिक थे, जब आप नौकरी कर लेंगे उसके बाद ही आप आम नागरिक बन जाएंगे। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। जो भी आपको स्थान मिलता है, जो भी आपको कुर्सी मिलती है और जो भी आगे आपको कुर्सियां मिलेंगी, ज्यादा से ज्यादा जिम्मेवारियां मिलेंगी, उनको निभाना होगा। ये आप याद रखिएगा कि ये अमर नहीं रहेंगी, कभी बदलती रहेंगी और आप अंत में फिर आम नागरिक बन जाएंगे। इसलिए हर दफे ये याद रखिए, आप जब भी आपको किसी मौके का सामना करना हो
या कोई आपके सामने आए किसी सहायता के लिए, मदद के लिए, उसकी कोई मुश्किलातें हों, जो उनसे आप बर्तावा करें, इस तरीके का बर्तावा करें जैसे कि आप दूसरी तरफ हैं और आपकी क्या उम्मीद हो। अगर ये आप याद रखेंगे तो गलत रास्ते पे आप कभी नहीं जाएंगे। ये जो दिमाग में माया आ जाती है, आंख में धुंधलापन आ जाता है, जब हाथ में सत्ता होता है, मिलता है, उसको आप भूल जाइए। ये समझिए कि ये जो आपको मौका मिल रहा है अपने भाई बहनों की सेवा करने का, उनको सुरक्षा देने के लिए, ये मौका बहुत ही चंदों को भगवान देता है और इसको ठीक तरह से आप निभाइए। कुछ मैं दिल्ली के विषय में भी कहना चाहता हूं। सावधान रहना होता है ताकि हम देखें हम गलत कदम ना उठाएं। यहां आपको खास तौर पर वीवीआईपीज की सुरक्षा करनी हो। अफसोस की बात है कि सुरक्षित माहौल ठीक नहीं है। आतंकवादी लोग अभी तक काम कर रहे हैं। कोई शक्तियां हैं अंदरूनी और विदेशी जो चाहती है कि हमारे देश को कमजोर करें, हमारे देश को तोड़ दें। लेकिन हम जानते हैं, हमारे अपने आप में पूरा विश्वास है कि इस चुनौती का हम ठीक तरह से बहादुरी से सामना जरूर करेंगे। आपको तो एक सुरक्षा देनी है वीवीआई पुलिस को। दूसरा, यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है वो भी बहुत कठिन है। पड़ोसी प्रदेशों में आतंकवादी हैं, वो भी अपना खून खराबा कर रहे हैं, उसका असर दिल्ली पर पड़ता है। लेकिन मुझे ये कहने में बड़ी खुशी है कि पिछले महीनों में हमने सामना किया है और दिल्ली में कोई आतंकवादी कामयाब नहीं हुआ। ये सिर्फ दिल्ली पुलिस को मैं पूरी बात कहता हूं। साथ साथ आप देखते हैं कि कम्युनल हार्मनी भी, कम्युनल डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं दूसरे प्रदेशों में, लेकिन दिल्ली में कोई इस किस्म का दंगा फसाद नहीं हुआ। और यहां पे खून खराबा हुआ लेकिन दिल्ली में शांति रही। बंबई में खून खराबा हुआ लेकिन दिल्ली में शांति रही। इसमें दिल्ली पुलिस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस प्रकार की और अनेक किस्म का शहर है, बहुत ही तेजी की रफ्तार से उगता रहा है। यहाँ धन बहुत है और जब धन भी आता है, धन होता है तो खराब आंखें भी होती हैं, चोरी भी होती है, कत्ल भी होते हैं। इसके लिए आपको सुरक्षा करनी होती है। आपको अपने दिल्ली के निवासियों में विश्वास पैदा करना होता है कि उनकी जानें सुरक्षित हैं, उनका धन, उनकी इमारतें सुरक्षित हैं और ये आप ही के हाथों में है। लेकिन साथ साथ जहां बहुत धन होता है तो लालच भी आती है। आपने अभी शब्द ग्रहण किया ईमानदारी का। ये जो शब्द है इसको बहुत कठिन तरीके से आजमाया जाएगा। जैसे आप आगे देखेंगे आपके सामने बहुत लालचें पैदा होंगी। वो भी मौके आएंगे जब आप समझेंगे वे आप तब अमीर बन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ईमानदारी है। धन जो आता है वो चला भी जाता है, लेकिन एक दफे आपकी ईमानदारी के ऊपर धब्बा लग जाए तो वो धब्बा ऐसा है कभी मिटाया नहीं जा सकता। इसको आप हर समय पे याद रखिए कि सबसे बड़ी चीज ईमानदारी है और अगर आप यही दिखाएंगे तो सबका विश्वास आपके साथ होगा। मैं ये भी चाहता हूं कि जो मेरे दिल्ली के पुलिस के भाई बहन हैं ये भी याद रखें, पुलिस में नौकरी करना एक सेवा का मौका है। आप दूसरों के दोस्त बनिए। जो जनता है, जनता आप में विश्वास और भरोसा रखे। जब भी आप दूसरों को देखें तो उनके दिल में ये भावना पैदा होए कि ये दिल्ली के पुलिस का एक इंसान है और मैं सुरक्षित हूं।
आप अगर ये दिखाएं तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम करेंगे, क्योंकि कोई ये भी मौके आते हैं और ये भी हद से हुए हैं जब दिल्ली के पुलिस के मेंबरानों ने फायदा उठाया, नाजायज फायदा उठाया, सख्तियां की, गलत चीजें की। चंद लोग हैं जो करते हैं, लेकिन वो नाम सबको देते हैं, बुरा नाम सबको देते हैं। तो आप सब यही समझिए कि अगर एक को बुरा नाम मिलता है तो सब दिल्ली पुलिस का नाम खराब होता है। तो इसलिए आप सबकी यही जिम्मेवारी होती है कि अगर कोई भाई बहन आपका साथी गलत चीज करता है, उसको रोकिए, उसको टोकिए और उसको समझाइए कि ये चीज नहीं उसको करनी। तब ठीक तरह से आप करेंगे, ठीक तरह से आप रहेंगे। आज जब आपकी पासिंग आउट परेड हुई, मेरे दिल में खूब उबाला आया, बड़े मेरे दिल में आपके लिए गौरव हुआ। और मैं ये समझता हूं कि जो आपके यहाँ परिवार हैं, उनके दिलों में क्या नहीं होता, क्या नहीं चलता होगा, कितना उनको गौरव होगा, क्या आपने उनके लिए शान की बात की है। इसी प्रकार मैं ये चाहता हूं कि जब आप सेवा करते हैं दिल्ली के नागरिकों में, उन नागरिकों के दिलों में भी यही गौरव पैदा हो, यही फख्र हो कि ये हमारे दिल्ली के पुलिस के नौजवान और अफसर हैं, ये हमारी दिल्ली की शान है, हमारे लिए गौरव की बात है। अगर आप ये करेंगे, हम सबको आपकी जो आपको ट्रेनिंग दी गई है गौरव होगा, और यही आपकी एक तमन्ना होनी चाहिए। और ये अगर आप कहेंगे तो मैं ये कहता हूँ, आप अपने आप के लिए बहुत ही सेवा करेंगे, अपने परिवारों के लिए बहुत सेवा करेंगे, अपनी दिल्ली के लिए बहुत सेवा करेंगे। ये कहते हुए मैं आपको दाव देता हूँ और पूरी आशा रखता हूँ कि जो हम समझते हैं कि आप करेंगे, उसको आप दिखाएंगे। हमने आपके ऊपर, आप में बहुत भरोसा रखा है, हमें ये पूरी उम्मीद है, ये भरोसा की तामीर करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ और जय हिंद। परेड समाप्त हुई। परेड कमांडर ने दिल्ली पुलिस का बैंड चंबे की धार धुन बजाता हुआ परेड के इस शानदार प्रदर्शन पीटी दिखाने जा रहे हैं, जिसमें भाग ले रहे हैं रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर के 256 जवान। तो अब प्रस्तुत है मास पीटी। स्वागत किया।
सजोया था उप निरीक्षक ओम प्रकाश व निरीक्षक बलदान सिंह ने।
जब कभी किसी हमले से पहले गिरते हैं तो क्रूज व फौज की सहायता से अपने आप को चोट से बचाया जा सकता है। रोलिंग पूरी बॉडी को लॉक कर दिया गया। गर्दन लॉक, बेल्ट से या चेन से किस प्रकार हमले को विफल किया जाता है। वास्तविक लड़ाई है। कोहनी से बाहर, चाकू से हमला, हमलावर का चाकू छीन लिया गया। दोनों लोग आँख, कान, अगर तेरा भी लगे कॉलेज के तो गोली मार दूंगा। से ही डिफेंस, काबू पाना, बहुत ही खतरनाक का प्रदर्शन होगा। छीन लिए जाने के बाद भी कामयाब। संतरी लंबी चोटी के बाद सुस्त हो गया है। संतरी चुस्त है। मौका पाकर भी संतरी गोली नहीं करना चाहता। आतंकवादी को जिंदा गिरफ्तार कर लेना चाहता। आतंकवादी भाग लिया। भागते हुए जुडो करने जा रहे हैं। फुटबॉल,
व्यक्ति हवा में डाइव मारता है, इसे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र झरोदा कला के जवान प्रदर्शित कर रहे हैं। जरा सी भी चूक होने पर आग लग सकती है।
के जवान। लो लाइट लाया हूँ दुकान में, मेरे को लाइट की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जाने माने जादूगर गोगिया पाशा, पीसी सरकार, तोलाराम मीरवानी सभी इन्हीं के शिष्य हैं। आपकी नजर में बेहोश, मेरी नजर में होश में होगा। आपकी नजर में दो जग, मेरी नजर में जमीन पर पड़ा होगा। हर इंसान मारा मारा फटता है तो उसकी ठोकरे खाता किस वास्ते? आपके पेट के वास्ते। खबरदार पेट का नाम लिया तो पेट का नाम सुनते ही बड़े बड़े ठोकरे नंबरदार मूछों वाले तोड़ों वाले निकल जाएंगे। लेकिन असलियत ये है कि हर इंसान फटता है पेट के वास्ते। मैं पुलिस का जादूगर हूँ। आज इससे पहले कि जादू के संग तक में दिखाऊंगा।
थे। आज वो राजनिवास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि आप झरोटा पासिंग आउट परेड में गए हैं, तो वो 9 बजे की फ्लाइट में जाना है, वो आ रहे हैं। निगाहें झुकाओ, आदाब बजाओ। देखिए महाराज भुजंगाबाद साहब पढ़ा रहे हैं, इनकी भाषा को तो आप नहीं समझ सकते, आप इनकी भाषा को नहीं समझ सकते, लेकिन मैं इनका अनुवाद करके बताऊंगा। अब देखिए भुजंगाबाद साहब राज्यपाल साहब के दर्शन करने के लिए आए हैं। हाँ, भुजंगाबाद साहब फरमाते हैं कि भंडारी साहब से मैं बहुत प्रभावित हुआ, कई साल पहले मिला था। आज जब मैं दिल्ली में आया तो उनके दर्शन के बगैर कैसे जा सकता था। मैं राजनिवास गया, मुझे पता पड़ा हुए हैं, मैं उनसे जल्दी में मिल करके और नमस्कार करके 9 बजे की फ्लाइट से जाऊंगा। मैं बड़ा प्रभावित हुआ। दिल्ली की मैंने शांति देखी, पीसीआर की गाड़ी इत्यादि दिल्ली में चला रखी है, अपराध रोक रखे हैं, कितनी उग्रवादी के समय में भी कितनी शांति दिल्ली में है। मैं अपने आयुक्त साहब से बहुत प्रभावित हूँ और उनको बार बार बधाई देता हूँ। हाँ, भुजंगाबाद साहब कहते हैं जब मैंने मालूम किया कि प्रदर्शन किसने तैयार किया, किसकी देखरेख में, तो मुझे पता चला कि एडिशनल सीपी साहब करतार सिंह साहब आकर के तैयार कराते हैं और वो देखते हैं। तो मैंने ख्याल किया कि पहले तो हिंदुस्तान में आजादी के लिए एक महारानी झांसी पैदा हुई थी और करतार सिंह साहब ने तो हजारों महारानी झांसी पैदा कर दी है। हाँ, भुजंगाबाद साहब फरमाते हैं कि मुझे पता चला यहाँ के प्रिंसिपल पूरन सिंह साहब हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत से दिन रात में तैयार किया है। मैं राज्यपाल साहब और कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम 6 महीने के लिए डेपुटेशन पर मेरी कंट्री में भेज दें पूरन सिंह साहब को। मैं उन्हें कमिश्नर बना के ले जाऊंगा, जिससे कि मेरे देश की पुलिस का भी भलाई हो सके। हाँ, भुजंगाबाद साहब कहते हैं कि मैं अखिल में आपका बहुत आभारी हूँ और अपने देश में आने के लिए आप सब अधिकारियों को मैं परिवार के निमंत्रण देता हूँ। तो एक लेकड़ी खेल की दूसरी तैयार मेरे वास्ते, धर्म का पन्ना बिछाए देख मेरे वास्ते। पहला घोड़ा ऐसा ही पुलिस बाग सुल्ताना घोड़ी पर ले जाओ फाड़ने में कामयाब। अब जमुना घोड़ी पर आ रहे हैं एएसआई रणवीर सिंह। लाइट तो भाई रह गया। अब आ रहे हैं प्रिंसिपल लाल सिंह घोड़ी सावित्री। अब आ रहे हैं करण सिंह राधा घोड़ी पर। ये भी रह गया। और अंत में आ रहे हैं निर्मल सिंह। दर्शकों ने तालियों से उसका अभिनंदन किया। अब और बैग निकालते हुए एसआई प्रस्तुत है। मार्शल आर्ट क्राइम
लैंग्वेज वुमेन सेल और इस टीम में शामिल है महिला पुलिस सड़क जाएगा मजनू करमवीर भाई तू भी रोजन
भाई आगे देखो ये कोई गिनती नहीं हो रहा सुना था जो उग्रवादियों ने टिकट नष्ट करने के लिए टिकट अपने फेंका, लेकिन टिकट इंचार्ज इतना असली में था ये गोली चली थी। भाग में वारदात करके भाग रहे हैं, उनका पीछा पीसीआर की गाड़ी कर रही है और तमाम टिकट को वायरलेस द्वारा सर कर दिया गया है। उग्रवादी अपनी कार से बराबर पीसीआर की गाड़ी पर फायरिंग कर रहे हैं और पीसीआर की गाड़ी में बैठे कर्मी भी जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर काफी फायरिंग कर रहे हैं। एक टिकट ने दूर से कार आते और फायरिंग करते देखा, पोजीशन लेकर कार रोकने की कोशिश की। उग्रवादियों को धराशायी कर दिया। उग्रवादियों का सरगना जिसकी के टांग में गोली लगी है को जिंदा ही पकड़ लिया और दूसरे उग्रवादी ने पकड़े जाने के डर से साइनाइड कैप्सूल खाकर आत्महत्या कर ली। ये हमारा प्रदर्शन समाप्त होता है। इस स्थान पर बैठे रहें। धन्यवाद। हम सब आभारी हैं आदरणीय अतिथि महोदय के, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस भव्य परेड में पधारकर अपने कर कमलों द्वारा पुरस्कार वितरण किए व हमारा मार्गदर्शन किया। हम आभारी हैं उपस्थित पुलिस अधिकारियों व दर्शकों के। आपसे इजाजत लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ट्रेनिंग से निवेदन है कि वो ग्राउंड में ही बैठे रहे। हाँ चलो बाहर।
बस बस बस